डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Good afternoon, one and all present over here. Myself, Dr. Naishal Raval, working as an assistant professor at GLS University, Ahmedabad. I would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. In the last lecture, we had covered about the theories of the consumer behavior. We had talked about the indifference curve. We had talked about the various price effects, income effect, and the consumer effect. We had also covered the topic related to the properties of indifference curve, which also includes the topic related to the budget line or the price line. Along with this, today we are just going to move forward with the remaining topics like split over effect and the price effect of inferior goods, or maybe with the given goods as well, and how indifference curve is superior over the other economic theory. We will be also concluding the criticisms of indifference curve approach, followed by the Reville's preference theory and the axiomatic approach. Let us move with the first slide. This is where the topics. In the last session, we had covered up to the separation of price effect into income effect and substitute effect, along with the price effect in case of inferior goods as well as in the given paradox. Okay. So from there, we are going to continue it. Before continuing, I would just like to revise brief point, that is ICC, that is income effect, and it is a locus of all equilibrium points at the various levels of consumer इक्विलिब्रियम. कैसे इनकम चेंज होती है और वो किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने की कोशिश करता है. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन measure the consumer equilibrium. Substitute effect, PQ with the equilibrium at R on the IC. Here IC means indifference curve. OB of X कितना वो बाय कर सकता है. सब्सटीट्यूट इफेक्ट में क्या होता है जनरली कि एग्जांपल में देखा जाए तो हम कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वो अवेलेबल ना हो, तो उसके बदले पे हम दूसरा प्रोडक्ट लेकर बाय करने की कोशिश करते हैं, और जब दूसरा प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो उसकी प्राइस पहले प्रोडक्ट की कंपेयर से थोड़ा सा सस्ते दाम पर रहता है. देन एंड इट लीड्स टू द सब्सटीट्यूट इफेक्ट. अलॉन्ग इट ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कस्टमर. दिस इज़ वॉट वी ऑल्सो सॉ दैट प्राइस इफेक्ट कैसे काम करता है. ठीक है. Successive equilibrium level of consumptions of the consumer due to change in the price of the commodity. Split effect, प्राइस इफेक्ट क्या है तो कि वो एडिशन है किसका, तो कि इनकम एंड सब्सटीट्यूट इफेक्ट का. ठीक है. एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीजेज, when the price of the particular product decreases, the real income of the consumer increases. तो यहाँ तक था अपना जे.आर. हिक्स ने एक compensating income approach को generate किया था, which is also known as Hicksian approach. Along with there are also other approach like equivalent variations on the methods, or you can say the Slutsky's approach over there. This was the separation. I will not repeat this point right now. Equilibrium at R on the budget line PQ, जो हमने पहले पिछली बार भी डिस्कशंस किया था उसका. Let us go with this inferior goods. अब इनकम इफेक्ट क्या है. ठीक है. सपोज मान लो कि आपका लिमिट 10,000 तक है और उसका प्राइस आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है या तो आपका इनकम इंक्रीज हुआ है. ठीक है. तो अगर इनकम इंक्रीज होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं. सपोज इनकम डिक्रीज हो गया या तो 1-2 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिली, तो उस दौरान रिसोर्सेस अपना लिमिटेड हो जाएगा. एंड विद इन दिस लिमिटेड रिसोर्स वी नीड टू फुलफिल आवर ऑल डिमांड्स. अब अगर इनकम डिक्रीज होती है तो तुम्हारा पोर्शन ऑफ बाइंग जो है वो भी कम हो जाएगा. कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे with our budget line, with our requirement. ठीक है.
So this is what the inferior income effect. अब inferior goods में कैसे ये काम करता है, तो so to isolate the income effect, see the diagram over there, the page x-axis represent the goods x, y-axis represents the good y. ठीक है, अब इनकम इफेक्ट कहाँ पर बनता है? लाइन पी क्यू आप देखोगे वो अपना ओरिजिनल बजट लाइन है पी क्यू, ठीक है. दूसरा बजट लाइन बना है पी क्यू वन, जहाँ पर टी आपको आई सी टू पर मिलेगा. नाउ व्हाट इज दिस आई सी? इंडिफरेंस कर्व, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज. ठीक है, अब मोमेंट ऑफ एच टू टी, द प्राइस फॉल, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स प्रोडक्ट. इफ द प्राइस इज फॉलिंग, तो कस्टमर क्या करेगा? वो ज़्यादा बाय करने की कोशिश करेगा. और जब वो नया बाय करता है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर जाएगा? कि भाई पहले वाले में एच इक्विलिब्रियम था, तो उसके बदले पर वो टी पर इक्विलिब्रियम बनाएगा. एंड वंस इट इज इक्विलिब्रियम एट टी, द न्यू budget line will be the PQ1. Horizontal line moving from D to E. You can see the diagram over there. ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर D से E तक हम जाते हैं. ठीक है, B और D के बीच में E आया है. And when the income is falling, the price of X will be positive because the real income increases. As I said earlier, the income for the particular product is decreasing, your real income will be increasing. 10,000 की प्रोडक्ट के ऊपर अगर 2,000 भी कम होते हैं, तो अपना जो 2,000 पैसे बचते हैं वो हमारा रियल इनकम हो गया. एंड ऑन द अदर हैंड द रिजल्ट विल बी कि भाई सब्सटीट्यूट इफेक्ट विल रिजल्ट इनटू द नेगेटिव, जस्ट ओनली बिकॉज इट विल इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. दो प्रोडक्ट मार्केट में होती है ए एंड बी. ए का प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. जनरली दिस कैन बी द केस इन समवेयर इन द फूड प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, जैसे कि राइस है. ठीक है, now let us go with the given goods. Equilibrium is at R, where the budget line is PQ. Almost see the diagram over there, inferior line, inferior goods का diagram. ठीक है, PQ and PQ1 are the new and the old budget line. Equilibrium is at R, the budget line is PQ at IC1. IC का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस. तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि भाई सेटिस्फैक्शन इंसान को कौन से बजट लाइन पर मिलेगा, PQ पर या PQ1 के ऊपर. ठीक है, अब सपोज मान लो प्राइस इज फॉलिंग, कंज्यूमर इज मूविंग फ्रॉम R टू T. R इज द इक्विलिब्रियम ओवर देयर इन द प्रीवियस वन. ठीक है, अब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मूव होता है, R से जाता है T पर. और जब T is an equilibrium condition on the budget line PQ1, then the IC2 is the indifference curve. In case of given goods, what's happening? कि भाई positive income effect is getting stronger and stronger and the substitute effect is getting negative, so that the total price effect will be in terms of positive. Simple सा rule है कि कस्टमर को अगर सस्ती प्रोडक्ट कोई मिलेगा वो उस तरफ पहले जाएगा. या तो प्राइस डिक्रीज़ होती है किसी प्रोडक्ट की और उसका रिसोर्सेज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट विल लीड्स टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स. दैट इज़ व्हाई द डिमांड कर्व फॉर गिवन गुड्स इज पॉजिटिव स्लो एंड देयरफॉर इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पहले आप बजट लाइन देखिए, सबसे पहला बजट लाइन कौन सा है? तो कि PQ. ठीक है, now if the income is the price of the product is falling, a person can buy more products. Yesterday we took the example of a petrol price. ठीक है, 100 रुपीज़ से अगर 90 रुपीज़ होता है तो तुमको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा. एंड ऑलवेज कस्टमर्स और कंज्यूमर और पीपल ऑलवेज वांट समथिंग मोर, वाई जस्ट विद इन द सम पर्टिकुलर लिमिट्स. ठीक है, तो अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड अपना नया बजट लाइन बन गया, डेट इज़ PQ1. एंड द व्हाट विल बी द प्राइस इफेक्ट? तो प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूट इफेक्ट. DE जो लिखा है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, उसमें से हम BD को माइनस करते हैं, दैट इज योर सब्सटीट्यूट इफेक्ट. So this is what we saw right now, the split effect of split of price effect into income and
substitute effect. Let us go backward little bit. This was the equation in the last to last slide. Split of price effect. What is price effect? Income effect plus substitute effect. बाजार में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं हम तो सब दो चीज़ें सबसे पहले देखते हैं. एक तो अपना रिसोर्सेज को देखते हैं और दूसरा प्रोडक्ट की प्राइस कितना में मिलता है. ठीक है. प्लस if you are not able to get those product within your desired amount of income or within the given amount of your resources, there are always a substitute product available in the market. One can also go with that substitute product which is always available at the cheaper rate compared to the compared to the some other product. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट वी सॉ. इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स में प्राइस इफेक्ट कैसे रोल प्ले करता है. ठीक है. तो यहाँ पर प्राइस इफेक्ट क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पर आप देखिए BE का टोटल है, दैट इज़ अ प्राइस इफेक्ट. ठीक है. इज इक्वल्स टू DE. ठीक है. माइनस BD. बड़ी मात्रा में से हमेशा छोटी मात्रा माइनस होती है. एंड वट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज़ योर प्राइस इफेक्ट. नाउ let us draw the derivation of demand curve. डिमांड कर्व कैसे होता है वो आपने अपने ब्लॉक 1 में देखा हुआ था कि भाई डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके. फ्रॉम प्राइस कंजप्शन कर्व PCC के ज़रिए डिमांड कर्व तुम्हारा कैसे रहता है. तो लेट अस मूव विद सम इंट्रोडक्शंस पॉइंट्स लाइक प्राइस कंजप्शन कर्व इंडिकेट्स. क्या इंडिकेट करता है वो? द अमाउंट ऑफ कमोडिटी बॉट बाय द कंज्यूमर. जब प्राइस आपका चेंज होता है तब. अब जब प्राइस चेंज होता है तब जाहिर सी बात है कि अपने ज़्यादा बाय करते हैं. ठीक है. मार्शल एंड डिमांड कर्व क्या कहता है कि इट शोज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस एंड ceteris paribus. ceteris paribus मीन्स अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, जो कि कभी कॉन्स्टेंट होता नहीं है. ठीक है. डायग्राम में अपने देखेंगे वहाँ पर गिवन इनकम एंड इंडिफरेंस कर्व इज़ पॉसिबल. इंडिफरेंस कर्व और अपना इनकम लाइन, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने देखा था. दिस ऑल्सो कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजप्शन कर्व. एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द PCC ऑल्सो एक्सप्लेन द इनकम इफेक्ट एंड द सब्सटीट्यूट इफेक्ट ऑफ अ गिवन फॉल और वेदर राइज इन प्राइस. एंड मार्शल इज फेलिंग टू एक्सप्लेन दिस. दस ऑर्डिनल टेक्निक इज ऑलवेज बेटर. ऐसा यहाँ पर कहने में आया है. इकोनॉमिक्स में कोई भी थियरी तुम जब पढ़ते हो, ठीक है, तो इट इज़ प्योरली डिपेंडेंट और बेस्ड ऑन सम assumptions, and at the last all those assumptions are consider your limitations, unrealistic assumptions, right? Income means constant. अब सिंपल सा सवाल है, इनकम कभी कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट मतलब सेम? ऑफ कोर्स नॉट. प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है? बिल्कुल भी नहीं. नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है. कभी एक प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है और वो डिक्रीज़ प्राइस करते हैं, कभी एक प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होती है, ठीक है, तो दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिक्रीज़ होगी साथ में. या तो कोई एक प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता है, प्राइस अपनी इंक्रीज़ करता है, तो वो दूसरा भी पीछे इंक्रीज़ करेगा. नॉर्मली दिस प्रोसेस कैन बी सीन इन दी ओलिगोपोली मार्केट की जहाँ पर आपको फ्यू सेलर्स मिलते हैं. वो अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में उसको कवर करेंगे. कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो रिमेन दी कॉन्स्टेंट. आपका प्रेफरेंस, आपका टेस्ट, बाय करने के लिए जाते हैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में तो हमेशा हम अपना प्रेफरेंस को चेंज करते हैं. ठीक है. इफ़ एनीवन दुकानदार अगर अपने को पुराना टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल बेचने की बात करता है या बेचने की कोशिश करता है तो हम हमेशा उसको कहते हैं भाई मेरे को नया टेक्नोलॉजी वाला चाहिए. 5G आ रही है तो मुझे 5G सपोर्टिव मोबाइल फ़ोन चाहिए. आई कैन नॉट वर्क विद द 3G और 4G फ़ोन. ठीक है. उसको तो स्टॉक क्लियरेंस करना होता है तो वो 4G बोलेगा कि ये 5G तक जा सकता है. और फ़ोन की लाइफ या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लाइफ, ख़ास तौर से अपने सेल फ़ोन की बात करें तो 3 से 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल. एंड फिर डिपेंड करता है कि हम कितना किस मात्रा में किस हिसाब से अपने यूज़ करते हैं उसका. सो कहने का मतलब है कि इट प्रेफरेंसेस ऑफ एनी कस्टमर और कंज्यूमर कीप्स चेंजिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर. ठीक है. सो लेट अस मूव विद द
diagrammatical representation of price consumption curve, derivations of demand curve through the PCC. ठीक है, अब एक डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है जहाँ पर डायग्राम ए एंड डायग्राम बी दोनों को रखा है और सेम प्राइस कंजप्शन कर्व के डायग्राम से तुम अपना डिमांड कर्व को डेराइव कर सकता है. ठीक है, सो बजट लाइन के ऊपर 3 बजट लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर. X axis represents the commodity quantity demand of goods X and Y axis represents the quantity demand of goods Y, or you can say the price of particular product Y. प्राइस है तो वो मनी इन्वॉल्व रहता है यहाँ पर. ठीक है, when consumer equilibrium is at RST point R on the top diagram, you can see the point RST, the equilibrium position forming the price consumption curve. Along with this, कौन से लाइन पर है वो, तो कि R is on the budget line PQ, S is on the budget line PQ1 and T is on the budget line PQ2. ठीक है, अब बारी आती है कि प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट बॉट बाय द कंज्यूमर. पहली बजट लाइन पर चलते हैं हम, PQ पर. R को हम फोकस करते हैं. ठीक है, वो कितने रुपए में बाय करने की कोशिश करता है, तो कि 5 रुपए में. ठीक है, टोटल मनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट बॉट. अब नीचे के डायग्राम में आप देखो तो कि 5 कहाँ पर आता है, कि सबसे टॉप पर जाता है Y एक्सिस पर. और वो कितना यूनिट बोरो कर सकता है, X एक्सिस का यूनिट देखिए तो कि 1 यूनिट को बोरो करता है. सिमिलरली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज ₹2. तो अगर प्राइस 2 रुपया है, ठीक है, तो 2 रुपये में वो कितने यूनिट बाय करता है, तो कि 4 यूनिट को बाय करता है. एंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एज एस. ठीक है, यू कैन सी दिस ओवर हियर. 4 और 2 का पॉइंट G पर जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना था. एंड द PQ2 प्राइस बजट लाइन PQ2 पर सीधा 3 रुपये से, नॉट 3 सॉरी, 1 रुपये से लेकर सीधा उसका यूनिट मिलता है 7 रुपये तक का. सो व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग, द क्वांटिटी डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल increase. You can see the column y-axis and x-axis, quantity of x is increasing when the quantity of y is falling. ठीक है, so this is how you can derive your demand curve over there from the price consumption curve. Now the question, now the point is superiority of indifference curve. ठीक है, मार्शलियन अप्रोच से या मार्शल की थियरी की कंपेयर से या यूटिलिटी थियरी की कंपेयर से अपना इंडिफरेंस कर्व कैसे सुपीरियर जाता है. यूटिलिटी कंजप्शन कर्व में आप देखा जाएगा तो ओनली 1 गुड्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट. यहाँ पर वो 2 गुड्स को लेने की बात करते हैं. गुड्स आर ऑलवेज क्लासिफाइड इनटू सब्सटीट्यूट एज वेल इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल होता है. एक के साथ एक फ्री मिलता है कभी, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री. खासतौर से आपको टूथपेस्ट में मिलता है, टूथपेस्ट के साथ ब्रश में फ्री में आता है, या तो 3 साबुन का पैक होता है तो एक छोटा सा सैंपल साबुन साथ में रखा जाता है. व्हीकल खरीदा है तो शायद हो सकता है कि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक आपको 200-300 रुपये का पेट्रोल फ्री में दे, एटलीस्ट पेट्रोल पंप तक अपना गाड़ी चल सके, उतना पेट्रोल अंदर पहले से रखा जाता है. दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पेन बाय करना है तो रिफ़िल साथ में आती है कभी. ठीक है, इंक पेन बाय करना तो शायद छोटा सा इंक पॉट आपके साथ में रखा होगा. दिज आर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट इन द इजीली अवेलेबल एट द मार्केट. इवन जब भी कोई रिसोर्ट में जाते हैं या होटल में जाते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज देता है. नो यूज़ ऑफ एन एजम्पशंस ऑफ कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है, यहाँ पर मनी के कहीं पर हम बात नहीं कर रहे फ़िलहाल के लिए. It explains the law of demand at the more realistic approach. Unrealistic approach नहीं. Unrealistic approach में क्या था, तो कि income remains the same, जो कभी नहीं होती है. Taste and preference keep changing, but assume किया था वो constant जाता है. It also explain the proportionally the rule in a better way compared to the Marshallian approach. So consumer behavior को measure करने के लिए 2 अप्रोच रखे गए हैं. एक indifference curve अप्रोच है, दूसरा अपना utility अप्रोच है. और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये आता है कि indifference curve अप्रोच इज मोर सुपीरियर कंपेयर टू द utility अप्रोच.
ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऑल द थियरीज जिन्होंने दिया है वो सब की सब सही तरीके से जाती है। कुछ क्रिटिसिजम्स इसके भी हुआ है और आपके स्क्रीन के ऊपर वो क्रिटिसिजम्स भी है। सबसे पहला बात किया है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। अब अनरियलिस्टिक एजम्पशंस क्या था, तो कि इनकम इज कांस्टेंट विच नेवर रिमेन्स ए कांस्टेंट, इट इज़ ए हाइपोथेटिकल। अज्यूम किया है कि इतना इतना चीज़ें होगा आपके मार्केट में, आप जाओगे तो ये होगा वो होगा, लेकिन एक्चुअल तो जब आप मार्केट में जाओगे तो ही पता चलेगा कि तुम्हारा इनकम कितना था, तुम्हारी डिमांड कितनी है, प्राइस कितना है, और उसके कारण इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूट कैसे बनता है। इट फेल्स टू ऑब्जर्व द कंज्यूमर बिहेवियर बिकॉज कंज्यूमर्स बिहेवियर इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कल भी कहा था कि किसी को 2 चीज़ खरीदने से सेटिस्फैक्शंस मिलता है, तो किसी को 3 खरीदने से, किसी को 4 खरीदने से, डिपेंड करता है कि वो अपनी इनकम का कैसे उपयोग करता है। कॉम्बिनेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी प्रिंसिपल्स। आपने इंडिफरेंस कर्व का हमने जब अभी बात किया तो उसमें कॉम्बिनेशंस दिखाए थे, 4-5 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर थे पिछली स्लाइड्स में, तो वो कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल उसका नहीं है कि बेस उसके आधार पर एक कॉम्बिनेशंस दिया जाए। 2 गुड मॉडल्स आर अनरियलिस्टिक। मार्केट में जब भी हम जाते हैं तो एक प्रोडक्ट नहीं है, 2 प्रोडक्ट नहीं है, हमेशा 2 से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। ठीक है, तुम किस में बाय करने की कोशिश करते हो उसकी चर्चा यहाँ पर की जाती है। सो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस ऑफ ओनली 2 गुड्स based on the unrealistic assumptions of a perfect competition. This is a kind of a market. And a perfect competition means a large number of buyers and sellers. जैसे कि स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, वहाँ पर खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत से होते हैं। ठीक है, तो ये एक अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव विद द अदर थियरी। हियर वी है कंप्लीटेड विद द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब तक हमने कवर किया थियरीज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर में मार्शलियन अप्रोच एंड वी हैड कवर विद द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। लेट अस मूव विद द थर्ड वन, दैट इज रिवील प्रेफरेंस थियरी। इट हैज़ बीन गिवन बाय द पॉल सैमुएल्सन। अब तक हमने क्या देखा था कि मार्शल और हिक्स दोनों साइकोलॉजिकल मेथड्स को अपनाया था कि कस्टमर जब या कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है विद इन द गिवन अमाउंट ऑफ इनकम। अब रिवील प्रेफरेंस क्या एक्सप्लेन करता है कि इट एक्सप्लेन्स कंज्यूमर्स डिमांड फ्रॉम द एक्चुअल बिहेवियर। तुम्हारा एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, तुम कौन से स्थिति में बाय करते हो वो प्रोडक्ट, नेसेसिटी है या नेसेसिटी नहीं है, या लग्जरी प्रोडक्ट है, राइट। सो पिलर्स ऑफ दिस थियरी आर लाइक बिहेवियर अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी कंपेरेबल ज़रूर है लेकिन क्वांटिफाइबल नहीं है। दिस थियरी कैन इजीली वर्क विथ और कंपेयर विद द मार्शलियन अप्रोच। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अपने लिया हुआ है बट स्टिल वो क्वांटिफाइबल में बात नहीं करता है। दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस। मार्केट में जब कोई खरीदी करने के लिए जाता है तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस किस में देते हैं, वो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के ज़रिए उसको समझाया गया है। सो रिवील प्रेफरेंस थियरी इज़ ए पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल मैथड्स। कंज्यूमर्स बिहेवियर साइकोलॉजिकली चेंज होता है, समय के साथ साथ चेंज होता है। जैसे कोरोना वायरस के दरमियान या कोविड-19 या पैंडेमिक के दरमियान सबसे ज़्यादा डिमांड रहती थी कंज्यूमर की, खासतौर से फूड ग्रेन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के रिलेटेड। बाकी सारी प्रोडक्ट्स का इतना डिमांड नहीं रहता था, खासतौर से फार्मा प्रोडक्ट्स लाइक सैनिटाइज़र एंड मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती थी। ठीक है, सो कंज्यूमर्स डिमांड फ्रॉम द एक्चुअल बिहेवियर। अब उस दौरान कोई ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे मूवी देखने जाना है, मूवी का थिएटर का डिमांड ज़्यादा है या पॉपकॉर्न का डिमांड ज़्यादा है। नो अदर प्रोडक्ट्स। सो द कंज्यूमर डिमांड्स फ्रॉम द एक्चुअल बिहेवियर दैट कैन बी नोन फ्रॉम द रिवील प्रेफरेंस थियरी विच हैज़ बीन गिवन बाय द पॉल सैमुएल्सन, प्रोफेसर सैमुएल्सन। ठीक है, चौथा अप्रोच ये किए है एक्सियोमेटिक अप्रोच, जिसको हम ये कहेंगे कि भाई गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बाय इंस्टेड ऑफ अनदर देन द कंज्यूमर विल मेक सेम चॉइस। एक्सियोमेटिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वीक एक्सियोमेटिक अप्रोच एंड द स्ट्रॉन्ग एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है, WARP यानी वीक एक्सियोमेटिक रिवील प्रेफरेंस क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास इनकम पता है और प्राइस पता है, and if the price of the product or services is by instead of another,
then the consumer will definitely make the same choice. मार्केट में जाओगे और अगर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सेटिस्फैक्शन दोनों में सेम मिलता है लेकिन प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, तो पीपल विल ऑलवेज प्रीफर जहाँ पर प्राइस कम रहेगी वो प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश करेगा. Weak axiomatic approach also states that if we buy one particular goods, then we will be never buying the other goods or other brand unless it is a cheaper rate. Other increases conveniency or is better quality unless it provides the more benefits. नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने की कोशिश करते हैं और हमने बाय भी कर दिया, हम अपनी रिसोर्स में दूसरी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, दूसरी ब्रांड की प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे, जस्ट अनलेस इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल एट द चीपर रेट. अगर सस्ते दाम पर मिलता है तो ही हम उसको बाय करेंगे. एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट है या वाई ब्रांड की प्रोडक्ट है, इट डिपेंड्स. And as the consumers, we will be buying what we prefer and our choices will be consistent. So suggest the weak axiom. Consumer preference है, choice है, हमेशा से वो change होती जा रही है. ठीक है. So once it keeps changing, weak axiomatic approach for reveal preference theory will be always there. After weak axiomatic approach, let us move with the strong axiom reveal preference theory, SARP. वो क्या कहता है कि there are only two goods from which to select from the two dimensional world. आप मार्केट में जाते हो, आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलता है, सेटिस्फैक्शन सेम मिलता है, लेकिन प्राइस में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते हैं. एंड एट द लास्ट वी से दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन एंड द वीक एक्शन आर शोन टू बी इक्विवेलेंट. ठीक है. So let us conclude this sessions over here. In this sessions we had covered about the topics like reveal preference theory, axiomatic approach, criticisms of indifference curve, superiority, derivations of demand curve, price consumptions curve, income effect, inferior goods given paradox, separation of the price effect into income and substitution, split of price effect. I hope I am clear from my side. In the next sessions, we are going to discuss about the unit 3, that is the demand forecasting. Quite easy topic for you people compared to the previous topic. Let us end our session over here. Thank you very much.